Hello class 3 students. Today I am going to continue with science. Open at page number 61, muscular system. I discussed with you the skeletal system in the last class. Today I am going to discuss with muscular system. First, you are given a direction to place your left hand on your right upper arm. This is your right arm. This is your right arm. You are asked to place your hand on this position, upper hand. Upper hand. This part is your upper hand. Now you place your left arm here, just here. Can you feel a strong muscle here? এখানে একটা strong muscle অনুভব করতে পারছো? Yes. Now, if you bend and straighten, you bend your arm and now you straighten your arm. See, you can feel something here move. You can feel something here move. Feel it by yourself? Okay. What is this? What is the thing that you can feel? It is your muscle. Not a single muscle is there. Thousands of muscles are there in your body. Thousands of muscles with different names. Some of them are attached to your bones. Some muscles are there which are attached to the bones. Actually, this is your hand stretched up. When you want to bend your hand, how is it bending? Let me make you clear. Here is a bone and here is another bone. These bones are attached to these muscles. Here also muscles are there. Muscles are there in the top of the bone. Similarly, in case of this arm, there are bones inside. The bones are fixed to muscles. When you bend your arm, actually the muscles pull the bones. Muscles গুলো হাড়গুলোকে টানছে, টেনে তোমার হাতটাকে বেন্ড করাচ্ছে. They pull your bones to make them move. You need strong muscles to lift heavy things or to run fast. Suppose you are asked to lift up a bucket of water. এক বালতি জল তোমাদের তুলতে বলা হলো, বড় বালতি. Unless and otherwise you have strong muscles, তোমরা তুলতে পারবে না. কেন? না, যখন জলটা তুলছো তখন তোমাদের এই হ্যান্ডটা বেন্ড হতে হবে. হ্যান্ডটা বেন্ড করছে মানে এই হাতটা তার ওয়েট প্লাস ওই বাকেটে থাকা জলের এবং বালতিটার ওয়েট একসাথে রয়েছে এই হাতের এই পজিশনে. এই পজিশনটাকে লিফট করতে গেলে মাসল গুলোকে স্ট্রং হতে হবে, আর তা না হলে ব্যথা হবে বা তুলতে পারবে না. Got it? Or to run fast means, if you want to run fast, you need to have strong muscles. Run fast মানে কি? তোমরা যখন দৌড়ো একটা পা আর একটা পা, একটা পা আর একটা পা এরকম করে খুব সুইফটলি, খুব তাড়াতাড়ি ইন্টারচেঞ্জ করো পজিশনটা দুটো পায়ে, এবং দুটো পা বেন্ড করে একটা নির্দিষ্ট রিদিমে. এই বেন্ড কিন্তু এমনি এমনি করে না. যে মাসল যত পাওয়ারফুল, সে তত তাড়াতাড়ি সেই হাড়গুলোকে বেন্ড করাতে পারবে এবং সে তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারবে. That is why you need strong muscles to run fast. The muscles of your body form the muscular system. You can see in your picture, in your book, so many muscles are adhered together. So many muscles.
এই প্রত্যেকটা মাসেলের কিন্তু আলাদা আলাদা নাম আছে, তোমরা হায়ার ক্লাসে জানবে। আর যারা তোমরা মেডিকেল স্টুডেন্ট হতে ইচ্ছুক তারা ভবিষ্যতে আরো ডিটেলসে এই মাসকুলার অ্যাক্টিভিটি মাসেলস এর নাম সেগুলো জানতে পারবে। The next system is one of the most important systems in our body, the digestive system. এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাকে এলিমেন্টারি সিস্টেমও বলা হয়ে থাকে। এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেম হচ্ছে যে কোনো খাবার, whenever you eat any kind of food, সেটাকে রক্তের মধ্যে মেশানো পর্যন্ত, সেই খাবারটা তুমি যদি মনে করো বিরিয়ানি খাও, বিরিয়ানি কি বিরিয়ানি হয়ে রক্তে মিশবে না, বিরিয়ানি তোমার মুখ পর্যন্তই। তারপর ধীরে ধীরে সে তার রূপ পরিবর্তন করবে, চেঞ্জ হবে, তা তোমার স্টমাকে পৌঁছানোর পরে তারপরে আরো চেঞ্জ হবে, তারপরে সেটা লিকুইডে পরিণত হবে, পার্টিকেলসে পরিণত হবে, যেটা কিনা রক্তে মিশবে, সেই রক্ত তোমার সারা শরীরে পৌঁছবে। সেই রক্তে মেশার আগে পর্যন্ত এবং তুমি এই খাবারটা মুখে দেওয়া পর থেকে শুরু করে ওই রক্তে মেশা পর্যন্ত যে টোটাল সিস্টেমটা কাজ করছে, তোমার দাঁত দিয়ে চিবানো, মুখের মধ্যে লালা বেরোনো, স্যালাইভা যেটাকে ইংলিশে বলে, তারপরে সেটাকে তুমি গিললে, সেটা ফুড পাইপ দিয়ে গেল, যাওয়ার পরে স্টম্যাকে পড়লো, এবার স্টম্যাক ওয়ালস দিয়ে বিভিন্ন রকমের অ্যাসিড সিক্রিশন হলো, বিভিন্ন লিকুইড সিক্রিশন হলো, সেগুলো তোমার যে খাবারটা খেলে সেটাকে একদম একটা পাল্পে পরিণত করলো। এই যে বিভিন্ন তোমরা ধীরে ধীরে পড়বে, আমি সেটা শেখাবো। টোটাল সিস্টেমটা রক্তে মেশার আগে পর্যন্ত, একে আমরা বলবো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। What happens to food you eat? क्या होता है जो खाना तुम खाते हो उसका? The food has to be broken down into very small simple pieces. खाना जब तुम खाते हो, सपोज तुम सैंडविच खा रहे हो, चिकन सैंडविच या फिर वेज सैंडविच, जो भी हो, वो सैंडविच जब तुम्हारे हाथ में है, वो सैंडविच है, जब तुम्हारे मुंह में गया, थोड़ा सा चबा लिया, वो सैंडविच और नहीं रहा, वो छोटा छोटा पार्टिकल्स में डिवाइडेड हो गया, ब्रोकन हो गया, तोड़ा गया उसको मुंह के अंदर। यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे, जो खाना तुम खा रहे हो, चाहे वो जो भी हो, पिज्जा हो सकता है, सैंडविच हो सकता है, चावल हो सकता है, बिरयानी हो सकता है, जो भी हो, वो उसको तुम्हारे शरीर तभी लेगा जब वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन होगा, तोड़ा हुआ होगा। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो छोटे पीस में कन्वर्ट होता है खाना, इसी प्रोसेस को बोलता है डाइजेशन। ओनली देन इट कैन बी एब्सॉर्ब्ड। जो खाना तुम्हारा मुंह के अंदर जाने के बाद शरीर के अंदर गया, वो छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्टेड हो गया, फिर वो खाना तुम्हारा शरीर में एब्सॉर्ब होगा, तुम्हारा शरीर चूस लेगा, तुम्हारा शरीर ले लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा बाय द बॉडी टू गिव एनर्जी। तो तुम्हारा शरीर वो खाना का छोटा छोटा पार्टिकल ब्लड के अंदर लेके क्या करेगा? कुछ तो काम करेगा उस खाना को लेकर तुम्हारा शरीर। हाँ जरूर, तुम्हें एनर्जी देगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे साथ, मेरा एनर्जी कम कर रहा है। तुम जो सुन रहे हो, तुम जब स्कूल आते हो, तुम जब खेलते हो, कहीं कुछ भी काम कर लेते हो, उसके वजह है एनर्जी। वो एनर्जी कौन देता है? तुम्हारा खाना देता है।
समझ में आया? और जो खाना टेबल में रखा जाता है, माँ खाना देता है, वो खाना तुम्हारा शरीर कब एब्जॉर्ब करता है? जब मुंह से तुम अंदर डालते हो और वो छोटा छोटा पीसेस में कन्वर्टेड हो जाते हैं। The food is digested by a group of organs to form your digestive system. जैसे तुमको पहले दिन मैंने बोला था, सब मशीन्स का बहुत सारे छोटा छोटा पार्ट्स होता है, उसी तरह ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी बहुत सारे ऑर्गन्स को लेके ये सिस्टम बना है। The food is first chewed well by your teeth in the mouth. पहले क्या होता है कि उस खाना का, पहले तुमने वो खाना अपने मुंह में डाला, फिर तुम्हारा जो दांत होता है, तुम्हारा जो टीथ होता है, वो उसको मंच करता है, चबाता है। चबाने से क्या होता है? उस खाना का, खाना तोड़ जाता है, उसका शेप बिगड़ जाता है, वो छोटा छोटा पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। मुंह से ही तुम्हारा ये जो मुंह होता है, मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये तुम जब बड़े होगे तो तुमको मालूम होगा कि कार्बोहाइड्रेट फूड जो है वो मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाते हैं। किससे? मुंह के अंदर में जो सलाइवा है, लाला है, वो सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है वो बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। अब क्या बोलता है? द च्यूड फूड इज स्वॉलोड। चबाया हुआ खाना जो है तुम्हारे मुंह में अभी तक है, वो तुम अभी अंदर ले लिया, स्वॉलो कर लिया। इट ट्रेवल्स टू द फूड पाइप। तुम एक तस्वीर की तरफ देखो, तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, जो मुंह के बाद लंबा पाइप नीचे उतर रहा है, उसका नाम है फूड पाइप, और इसका और एक नाम है एलिमेंटरी कैनल भी बोलता है इसको। ठीक है, अभी तुम इसको फूड पाइप ही बोलना। फाइन। ये फूड पाइप तुम्हारा खाना को कहां ले जाते हैं? फूड पाइप के अंदर और कुछ नहीं होता है। मुंह से सलाइवा निकला, वो कुछ कुछ खाना को डाइजेस्ट कर लिया, फिर जो खाना रह गया वो पाइप से अंदर से गया स्टोमैक में। और जो फूड पाइप है वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होता है, जस्ट वो फूड वहां से पास करता है। अब स्टोमैक कैसा दिखते हैं तुमको बताऊंगा मैं। स्टोमैक कौन सा है? तुम्हारा बुक में देखो, एलिमेंटरी पाइप और द फूड पाइप जहां एंड होता है वहां पे एक बेंड हुआ स्ट्रक्चर है, बीन की तरह। वो देखते हैं बीन, जो बीन है, बीन तुम खाते हो सब्जी, वो बीन सीड के तरह दिखते हैं। पिंक कलर का दिया हुआ है, अभी उसको स्टोमैक लिखा हुआ है, वैसी तरह दिखता है। द स्टोमैक इज ए थिक बैग मेड अप ऑफ मसल्स। स्टोमैक एक बैग की तरह है जो क्या मसल से तैयार हुआ है। हमारा शरीर का हर ऑर्गन मसल से ही तैयार हुआ है। हियर द फूड इज मिक्स्ड वेल विथ सम डाइजेस्टिव जूसेस। मैंने तुमको पहले ही बोला, यहाँ पे बहुत सारे जूस आके जुटता है, मिलता है खानों से। ये जूस आइदर स्टोमैक की वॉल जो है, स्टोमैक की वॉल से सिक्रेट होता है, आता है, या फिर गॉल ब्लाडर से आता है, या फिर और दूसरी तरह लीवर से आता होगा। वो जूस आके, डाइजेस्टिव जूस, जो हजम करने वाला जूस आते हैं, वो आके खाना में मिक्स हो जाते हैं और उस खाना को लिक्विड बना देते हैं। ए पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस। वो खाना अभी तो सॉलिड नहीं रहा, बहुत तरह का जूस उसमें मिक्स हो गया, हो जाने के बाद वो लिक्विड में ट्रांसफर हो गया, और वो लिक्विड उस स्टोमैक के अंदर वॉल्स में ही थोड़ा थोड़ा करके अंदर ले लिया गया, थोड़ा डाइजेशन उधर ही हो गया। द मैश्ड फूड, अब जो खाना रह गया जो एकदम पल्प की तरह होता है, जो तुम्हारा कैसे बोलो,
एकदम viscous fluid, आठा की तरह होता है, is then sent to the small intestine. वो स्टोमक के नीचे में देखो कर्व्ड हुए बहुत सारे पाइप्स है, एक ही पाइप है, बहुत सारे लगता है दिखने में, पाइप्स है बहुत सारे अंदर, जो वाला बड़ा वाला नहीं, लाइट पिंक वाला जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। वो मैश्ड फूड अभी स्टोमक में और नहीं रहा, वो चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। हियर इट इज फर्दर डाइजेस्टेड, इधर भी कुछ कुछ फ्लूइड और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीशन होता है। होने के बाद ये डाइजेशन हो जाते हैं और फिर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, वो वहां से ब्लड में चले जाते हैं। खाना छोटा छोटा पार्टिकल्स में लिक्विड में लिक्विड का तरह का फूड जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड रीचेस द लार्ज इंटेस्टाइन। वो जो पेचिला, वो जो कर्व्ड स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद एक बड़ा इंटेस्टाइन है, वो उतना लंबा तो नहीं है लेकिन उसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, वाटर इज एब्सॉर्ब, वहां पे जो खाने में जो लिक्विड वाटर है वो शरीर फिर से एब्सॉर्ब कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि वाटर अगर हमारा शरीर से निकल गए तो हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, मर जाएंगे हम, इसलिए वो वाटर शरीर फिर लार्ज इंटेस्टाइन से ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। Water is absorbed and the waste is then thrown out of their body through the anus. अब जो रह गया, जो खाना का जो अंश रह गया, वो तुम्हारा पोटी की तरफ से एनस से निकल जाता है। ठीक है, तो तुमको ये याद करना है, ये जो टोटल सिस्टम है खाना खाने से निकल जाने तक बॉडी से, कौन कौन सा ऑर्गन ये सिस्टम को बनाता है। पहले तो है तुम्हारा माउथ, फिर है तुम्हारा जो फूड पाइप वो है, फिर स्टोमक में आता है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब ऑर्गन्स जो है पहले माउथ, फिर फूड पाइप, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आफ्टर दैट द लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब पांचों ऑर्गन जुटा हुआ है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलाने के लिए। Is it clear to you? This is all for today. The next day I will continue with the respiratory system. Thank you.